محترم ناظرین السلام علیکم۔ ہم جس کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں وہ ہے ہاشم ندیم صاحب کی لکھی ہوئی کتاب پریزاد۔ ریکارڈنگ پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ مزید آنے والی ریکارڈنگز بھی آپ سن سکیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں پریزاد کا 14واں باب۔ استاد مستانہ کے شاگردوں نے بھی اپنے طور پر آس پاس پڑے اوزار بطور ہتھیار اٹھا لیے، کیونکہ انہیں یقین ہو گیا تھا کہ ان کا استاد اکیلا ہی ہم سے بھڑ جائے گا۔ تبھی میں نے پلٹ کر استاد مستانہ کی طرف دیکھا۔ کم از کم یہ 700 سال پرانا ریڈیو تو بدل لیتے استاد، اب تو اس کے اردو گانے بھی چائنیز میں سنائی دیتے ہیں۔ استاد کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا اور مجھ پر نظر پڑتے ہی جیسے وہ اپنی جگہ پر جامد ہو گیا۔ پھر اس کی آنکھوں سے ایک جھڑی سی جاری ہوئی اور وہ دوڑ کر روتا ہوا میرے گلے سے لگ گیا۔ اتنے دن بعد یاد آئی ہے اپنے استاد کی، او بے وفا، مجھے رفیق نے فون کر کے بتا دیا تھا کہ تم واپس آ چکے ہو۔ سارا گیراج ہمیں حیرت سے دیکھ رہا تھا اور پھر چند پرانے شاگردوں نے بھی مجھے پہچان لیا اور ہمارے گرد ایک جمگٹا سا لگ گیا۔ استاد نے بڑی مشکل سے انہیں ڈانٹ کر کام پر لگا دیا، مگر وہ سب بہانے سے میرے کار کے گرد چکر لگاتے رہے۔ وہ سب جان چکے تھے کہ کل تک میں بھی انہی میں سے ایک تھا، مگر آج ان کے سامنے ان کے خوابوں کی تعبیر بنا کھڑا تھا۔ ہم کمزور اور بے بس انسان جنم سے لے کر فنا ہونے تک یہی تو کرتے رہتے ہیں، اپنے خوابوں کا پیچھا، ان خوابوں کو سچ کرنے کی دھن، مگر ہمارے حصے میں تعبیریں بھلے کب آتی ہیں؟ وہ کوئی اور ہی ہوتے ہیں جن کے خواب تعبیر ہو پاتے ہیں۔ ہم تو ساری زندگی اپنے جھوٹے سچے خوابوں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، یا پھر کسی دوسرے کی کامیابی میں اپنے خوابوں کی تعبیر دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں۔ مگر گیراج کے یہ معصوم لڑکے یہ بات نہیں جانتے تھے کہ جو میں آج تھا وہ کبھی میرا خواب نہیں تھا۔ میں نے تو بس ایک چھوٹا سا خواب دیکھا تھا، بہت معصوم سا سپنا تھا میرا، مگر اس کی تعبیر پانے کے لیے مجھے جانے کتنے طویل رستوں سے گزرنا پڑا، مگر منزل ابھی تک لاپتہ تھی۔ شاید ہر انسان کا مقدر اپنے خوابوں کو کسی اور کے لیے تعبیر ہوتے دیکھنا ہے، اس کا اپنا خواب سدا خواب ہی رہ جاتا ہے۔ استاد مستانہ نے نکر کے ہوٹل سے میری پسندیدہ دودھ پتی چائے منگوا لی اور خود میرے سامنے بیٹھ کر ٹکر ٹکر مجھے دیکھنے لگا۔ تم نے تو واقعی کر دکھایا پیارے، ورنہ میرا تو معجزوں سے یقین ہی اٹھ چلا تھا۔ جو تم نے چاہا تمہیں مل گیا، اس دنیا میں ایسا کہاں ہوتا ہے؟ میں نے مسکرا کر استاد کی طرف دیکھا۔ صرف تھوڑی سی دولت آ گئی ہے میرے پاس، باقی کچھ نہیں بدلا استاد، میں ابھی تک وہی پرانا پریزاد ہوں۔ استاد نے پینترا بدل کر کہا، کمال کرتے ہو میاں، دولت سے بڑی تبدیلی بھی کچھ ہو سکتی ہے بھلا۔ لوگوں کی زندگیاں صرف ہو جاتی ہیں چند ڈیلے کمانے میں، اب مجھے کو دیکھ لو، سدا کنگال ہی رہے۔ یہ اچھا بتاؤ، کوئی شادی وادی بھی کی ہے یا نہیں، یا ابھی تک وہی شرمیلے اور کوارے پریزاد ہو؟ میں نے مزید چائے کا آخری گھونٹ حلق سے نیچے اتارا۔ بھلا مجھ سے کون شادی کرے گی استاد؟ اور پھر شاگرد بیاہ کر لے، اس کا استاد کوارا رہے، یہ کہاں کا دستور ہے؟ استاد نے کانوں کو ہاتھ لگایا، کیوں اس عمر میں بڑی لڈیا ڈبونے کی بات کرتے ہو پریزاد؟ اور یہ کیا بات کر دی تم نے کہ تم سے کون بیاہ کرے گا؟ ذرا اعلان تو کر کے دیکھو نکاح کا، پورا سومبر رچے گا تمہارا تو۔ میں نے استاد کی بات کسی اور جانب موڑ لی۔ میری شادی کی بات چھوڑو، تم یہ بتاؤ کہ گیراج کا یہ حال کیا بنا رکھا ہے؟ لگتا ہے برسوں سے رنگ اور روغن نہیں کروایا، کام والی گاڑیاں بھی اکا دکا کھڑی نظر آ رہی ہیں صحن میں، یہ سب کیا ہے؟ استاد نے میری بات ٹالنے کی کوشش کی۔ کچھ نہیں، دھندے میں بلا مندہ تو چلتا ہی رہتا ہے، تم سناؤ کیسے گزر رہی ہے؟ اتنے میں چائے کے برتن اٹھانے والے لڑکے نے ہماری بات سن کر راز کھول ہی دیا۔ یہ پریزاد بھائی، یہ گیراج تو گروی پڑا ہے ہمارا 3 سال سے، استاد غلط بتا رہا ہے، کوئی دھندا نہیں ہے، صرف مندہ ہی مندہ ہے آج کل یہاں۔ استاد نے بری طرح سے اس کی شاگرد کو جھاڑ پلائی۔ کم بخت، تو باز نہیں آئے گا بزرگوں کی باتوں میں دخل دینے سے، چل دفع ہو جا، جا کر اس 1882 کرولا کی ڈینٹ نکال، شام تک مجھے گاڑی تیار چاہیے ورنہ کھال ادھیڑ دوں گا تیری۔ لڑکا منہ بسوڑتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ میں نے استاد کی طرف دیکھا، یہ میں کیا سن رہا ہوں استاد؟ گیراج گروی پڑا ہے، کیوں؟ استاد نے ایک لمبی سانس بھری۔ اب کیا بتائیں میاں، پرانے مکینک اور گیراجوں کا کام ٹھپ ہو چکا ہے، گاڑیوں کے انجن اب سیل بند آتے ہیں، ٹیوننگ اور مرمت کمپیوٹر مشینوں پر ہوتی ہے، ٹائر بنا ٹیوب کے آ گئے ہیں اور خرات کا کام اب مشینیں کرتی ہیں۔ ہمارے پاس تو وہی چند پرانا کھٹاریاں گاڑیاں آتی ہیں جن کا مزاج نئی مشینیں سمجھ نہیں پاتی۔ خرچے تمہارے سامنے ہی تھے سارے، ایسے میں گیراج گروی نہ رکھتا تو اور کیا کرتا؟ مجھے اپنی فکر نہیں ہے، میں بس یہی سوچ کر پریشان رہتا ہوں کہ گیراج کی نیلامی کے بعد نیا مالک کہیں ان بچوں کو یہاں سے بے دخل نہ کر دے۔ تم تو جانتے ہو ان سب کے گھر انہی کے دم سے چلتے ہیں،
कई दफ़ा मैंने इनसे कहा है कि कम वक्तो जाओ, जाकर कोई नया धंधा ढूंढो, मगर ये यहाँ से टलते ही नहीं। मैं चुपचाप बैठा उस्ताद की सारी बातें सुनता रहा। किसके पास गिरवी रखा है ये गैराज तुमने? उस्ताद ने बेचारगी से मेरी तरफ देखा। इसी इलाके का एक सेठ है, भला आदमी है, नीलामी की तारीख से पहले हमें तंग नहीं करेगा। मुझे इस सेठ का नाम और मुकम्मल पता चाहिए उस्ताद ने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं प्यारे, उस्ताद अपने शागिर्दों को देता है, लेता कुछ नहीं। मैंने उस्ताद से ज़्यादा बहस नहीं की और कमाली को फ़ोन करके गैराज पहुंचने का कहा। आधे घंटे बाद ही वो हड़बड़ाया सा गैराज में मौजूद था। मैंने गैराज के सबसे सीनियर शागिर्द को कमाली और ड्राइवर के साथ सेठ की तरफ भिजवा दिया, जिसका पता गैराज के सभी लड़के जानते थे। 3 घंटे बाद कमाली रहन रखे गए कागजात के साथ मेरे सामने खड़ा था। मैंने जायदाद की आज़ादी के कागज़ उस्ताद की झोली में डाल कर दिए। ये गैराज जितना तुम्हारा है उतना ही मेरा भी है उस्ताद। अगले हफ्ते तक नई कंप्यूटराइज्ड मशीनें भी आ जाएंगी और तुम्हारी ये ड्यूटी है कि अपनी निगरानी में मेरे इस गैराज को एकदम टिप टॉप बना दो। अगली दफ़ा जब मैं अपने गैराज को देखने आऊँ तो मुझे यहाँ पुराना उस्ताद मस्ताना चाहिए। हाँ, मगर ये रेडियो ना बदलना, इसके बिना ये गैराज मुकम्मल नहीं होगा। उस्ताद मस्ताना गुमसुम सा हाथों में नीलामी के कागज़ लिए बैठा मुझे देख रहा था। मैंने इसका कंधा थपथपाया और उठकर वहाँ से जाने के लिए मुड़ा। उस्ताद ने मुझे पीछे से आवाज़ दी, परिजात। मैंने मुड़कर देखा तो वो मेरे गले लग गया। मेरे आसपास गैराज के सारे लड़के जमा हो चुके थे। किसी ने मेरे हाथ थाम रखे थे और कोई मेरे शाने से लगा खड़ा था। ये कमबख्त जान और खुरदरे कागज़ के चंद रुपए अपने अंदर कितनी खुशियों पर कब्जा जमाए रखते हैं। कैसे जादू टूने, कैसे करिश्मे दिखाता है ये पैसा। रोतों को हंसाता है और हंसतों से बिछड़कर उन्हें 8-8 आंसू रुलाता है। और ये दौलतमंद कितने अनजान रहते हैं इस पैसे के इस्तेमाल से। काश इन बेजान कागज़ों के टुकड़ों का सिर्फ एक मसरफ होता, खुशियों का कारोबार। इन लड़कों के चेहरों पर ऐसी खुशी थी जिसके बदले सारी दुनिया की दौलत भी लुटा दी जाती तो कोई घाटे का सौदा ना होता। मगर अमूमन कुदरत जिन्हें दौलत देती है बदले में इनका दिल निकाल ले जाती है। शायद इसीलिए ये दुनिया दिल वालों से खाली होती जा रही है। गैराज से निकलते निकलते दोपहर के 4 बज चुके थे। दफ्तर जाने का तो वक्त नहीं रहा था। मैंने ड्राइवर को गाड़ी घर की तरफ मोड़ने का कहा और फिर वापसी पर मेरी नज़र अपनी पुरानी यूनिवर्सिटी के बोर्ड पर पड़ी। मैंने गाड़ी रुकवा दी और कुछ देर के लिए नीचे उतरकर गेट से अंदर चला गया। इस तर्ज का मैंने ज़िंदगी के चंद अच्छे दिन गुजारे थे। अचानक ही मेरे अंदर खुद अपने ही हाथों दफनाया हुआ वो एक नाकाम सा शायर जाग उठा, जिसके कलाम पर दादो तस्कीन से कभी सामने नज़र आने वाला बड़ा ऑडिटोरियम गूंज उठता था। मुझे याद आया कि दुबई जाते वक्त अपनी सारी नज़में और कलाम टीन के डिब्बे में बंद करके अपने पुराने घर की छत वाले कमरे में छोड़ आया था। जाने अब वो सारे रजिस्टर और कागज़ों के दस्ते कहाँ होंगे। काश वो सब अपने साथ ही दुबई ले जाता। मैं उन्हीं ख्यालों में गुम था कि मेरे अकब से एक मानूस सी भारी आवाज़ गूंजी, तुम परिजाद हो ना? मैं चूम कर पलटा। मेरे अकब में खड़ी मेरी गाड़ी से कुछ फासले पर एक बुजुर्ग शेरवानी और जिनार टोपी पहने खड़े मुझे अपनी नज़र के चश्मे के पीछे से टुकटुकी बांध कर देख रहे थे। जी, मैं परिजाद हूँ, मगर आप? वो मेरी तरफ बढ़े। भूल गए? याददाश्त की कमज़ोरी तो बुढ़ापे से मशरूत होती है, मगर मैंने तुम्हें पहली ही नज़र में पहचान लिया था। मेरी ज़ुबान से बेख्तियार निकल पड़ा। मुझे पहचानने के लिए शायद याददाश्त शर्त न हो। आप शायद सर अहमद हैं, हमारी लाइब्रेरी के इंचार्ज। वो मुस्कुराए। ठीक पहचाना। तुम्हारे जाने के बाद उर्दू बज़्म अदब का शोबा भी मेरे हवाले कर दिया गया था। तुम्हारी कही हुई नज़में आज तक जामिया के अदबी पर्चे में छपती रहती हैं और तुम्हारी वो स्टेज ड्रामे वाली नज़म, गर तुम्हें मुझसे नफ़रत हो जाए। भाई वाह, क्या बात है। हर साल जब भी ओथेलो स्टेज पर पेश किया जाता है, पस मंज़र में तुम्हारी वो नज़म ज़रूर दोहराई जाती है और सच पूछो तो हर बार सारा हाल मबहूत और साकित बैठा सुनता रहता है। मैं खामोशी से अहमद साहब की बात सुनता रहा। मेरा दिल चाहा कि मैं उन्हें बताऊं कि वो शायरी भी किसी खास मकसद से करता था। सच्चे शायर ऐसा भला कब करते हैं? उन्होंने गौर से मेरी तरफ देखा, मगर एक बात मेरी समझ में नहीं आई। तुम अचानक यूनिवर्सिटी छोड़कर कहाँ चले गए थे? तालीम मुकम्मल की या नहीं तुमने? मैंने धीरे से जवाब दिया, कुछ घरेलू मजबूरियाँ थी, मुझे दुबई जाना था। सर अहमद ने पलटकर मेरी कीमती गाड़ी और गार्ड्स की तरफ देखा। लगता है तुमने वक्त ज़ाया नहीं किया। लेकिन तुम यहाँ बाहर लॉन में क्यों खड़े हो? अंदर चलो, बहुत से तालिबे इल्म तुमसे मिलना चाहेंगे। उर्दू शोबे में अक्सर तुम्हारी नज़मों पर बात चलती है। मैंने तरीके से माजरत की, नहीं सर, आज नहीं, ये मेरा कार्ड है। कभी फुर्सत मिले तो मेरे दफ्तर चक्कर लगा लीजिएगा। आपकी खिदमत करके मुझे बहुत खुशी होगी। यूनिवर्सिटी से घर वापस आने के बाद भी मैं बहुत देर तक यूनिवर्सिटी की यादों को अपने जहन से निकाल नहीं पाया।
मुझे नटखट सी लुबना भी याद आई, जाने वो कहाँ होगी। सेठ आबिद से शादी के बाद कभी इसके बारे में कुछ सुनने में नहीं आया। लुबना की माँ के एक जुमले ने मेरी ज़िंदगी के तमाम रास्ते बदल दिए, मगर मैं दौलत कमाने की धुन में ऐसा मगन हुआ कि मैंने अपने अंदर बसने वाले इस हसास और नाजुक इंसान को भी कुचल कर रख दिया, जो कभी मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। लेकिन इस सारी तगोदों में मुझे क्या मिला? मैं तो आज भी उतना ही तन्हा और अकेला था। न किसी हरफे दुआ में था, न किसी के दस्ते तलब में, न किसी की आंख का नूर था, न किसी के दिल का करार। मैं भी बहादुर शाह जफर की गज़ल के बोलों की तरह वही एक मुश्ते गुबार था जो किसी के काम ना आ सका। मुझे टेरेस पर बैठे जाने कितनी देर हो चुकी थी। बाहर अंधेरा फैलकर शाम को रात की स्याह चादर में लपेट चुका था। लोग दिन और रात को एक दूसरे की जिद कहते हैं, मगर मुझे तो ये दोनों एक दूसरे के साथी लगते हैं, पक्के दोस्त। तभी तो जब दिन शदीद थकन से चूर होकर शाम तक हाँफने लगता है, तब शाम अपनी मेहरबान सहेली रात को आवाज़ देकर बुलाती है और रात अपनी काली शाल इसके थके मांदे जिस्म को लपेटकर उसे सुला देती है। यूँ शायद हर रात की गोद में एक भरपूर दिन आंख मूंदे सो रहा होता है, बस हमें नज़र नहीं आता। कुछ देर बाद नौकर ने आकर बताया कि कमाली मुझसे मिलना चाहता है। कमाली टेरेस पर आया तो मामूल से ज़्यादा कुछ पुरतकल्लुफ़ लिबास में मलबूस था। ये क्या सर, आप अभी तक तैयार नहीं हुए? हमें सेठ रहमान के फार्म हाउस पर जाना है, पार्टी में। शाम से 3 मरतबा वो खुद मुझे याद दहानी करवा चुके हैं कि ये दावत ख़ास तौर पर आपके एजाज़ में मुनक्कद की जा रही है। मैंने जान छुड़वाने की कोशिश की, मेरा मूड नहीं है कमाली, तुम मेरी तरफ से कोई मुनासिब माजरत पेश कर देना। कमाली गड़बड़ा सा गया। नहीं सर, अच्छा नहीं लगेगा। सारे शहर के उमरा वहाँ इकट्ठे होंगे और फिर वहाँ हमें अपने नए आने वाले टेंडर के उम्मीदवारों से भी मिलने का मौका मिल जाएगा। नया कारोबार है अपना सर, ये मेलजोल रखना ज़रूरी है। मैंने बादल नख्वास्ता खुद को बड़ी मुश्किल से आमादा किया और घंटे भर बाद हम सेठ रहमान के फार्म हाउस की राह पर गामजन थे। आजकल अमीरों का एक नया मुश्किल बनता जा रहा है। शहर में ठीक ठाक आलीशान घर या जायदाद होने के बावजूद किसी वीराने में सैकड़ों एकड़ पर एक फार्म हाउस तमीर करवाया जाता है, जहां ऐसी कारोबारी और गैर रस्मी दावतें रखी जाती हैं। ये फार्म हाउस एक तरह से अमरा का स्टेटस सिंबल भी होते हैं और कुछ खास लोगों के लिए पर्दे का काम भी करते हैं। सेठ रहमान का फार्म हाउस भी कुछ ऐसा ही पर्दा महसूस होता था। कई एकड़ घास के मैदान और गल्फ कोर्स के दरमियान बड़ी शीशे की इमारत, जिसके आसपास मसनूई नहर और फवारों के जरिए पानी के बहाव का इंतज़ाम मौजूद था। इंसान मादी तौर पर जितना भी तरक्की कर ले, पानी और सब्ज़ा इसकी जिबिल्लत से कभी नहीं निकल सकता। हमारे जहनों में जन्नत का तस्वुर भी तो बहती नहरें, ठंडे चश्मों और घने सायों से मरबूत है। सारा फार्म हाउस बरकी कमकमों से जगमगा रहा था। बारबेक्यू का बंदोबस्त भी बाहर सब्जे में ही किया गया था। मैं वहाँ मौजूद लोगों से सिर्फ नाम की हद तक ही वाकिफ था, मगर लगता था कि कमाली ने मेरा काफ़ी तफसीली तारुफ करवा रखा था। तभी वो सब मुझे अच्छी तरह से जानते थे। मेरी कंपनी अगले हफ्ते एक बहुत बड़ा आर्डर टेंडर करने वाली थी। मियारी आलात की फराहमी और एक नई जदीद हाउसिंग सोसाइटी के लिए हमें बहुत बड़ी मालकियत का ठेका देना था, और वहाँ पार्टी में मौजूद सभी कारोबारी तबके इस ठेके में दिलचस्पी का इजहार कर रहे थे। सेठ रहमान 50-55 साल एक घाघ और शौकीन मिजाज शख्स था। इसने फर्दन फवर्दन सभी मेहमानों से मेरा तारुफ करवाया और वक्तन फ़वक्तन अपनी गुफ्तगू के दौरान मुझे जताने में कतन आर महसूस नहीं की कि वो हमारी कंपनी के ठेके में काफ़ी दिलचस्पी रखता है। हमारे साथ चलते हुए कमाली जिस तरह सेठ रहमान की तारीफ़ों में ज़मीन आसमान की कलाबे मिला रहा था, इससे मुझे ये समझने में देर नहीं लगी कि इसने कमाली को भी खुश कर रखा है। क्या बताऊं सर जी, ये अपने रहमान साहब तो यारों के यार हैं। बड़ा हल्ला गुल्ला लगा रहता है इनके फार्म हाउस पर। सूबाई और वफाकी वज़रा और नौकरे शाही तो समझ लें कि बस उन्हीं की दिलदादा हैं। आज भी काफ़ी मिनिस्टर्स और सेक्रेटरीज आपको इस दावत में नज़र आ रहे हैं। ये उन्हीं का कमाल है। सभी को खुश रखने का फ़न तो कोई सेठ रहमान से सीखे। कमाली की ज़ुबान कैंची की तरह चल रही थी। इस महफिल में मुझे एक और अदराक हुआ। इखलाकियात और शर्मो हया के मेयार हर तबके में अपने तौर पर राइज। महफिल में ज़र्क बज़र्क और झिलमिल करते लिबासों में मौजूद ख़वातीनों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी, जो इस आज़ादाना माहौल में यहाँ वहाँ इठलाती फिर रही थी। और फिर इनमें से कहीं ज़्यादातर वो थीं जो किसी न किसी बड़े आदमी के साथ बतौर दोस्त इस महफिल में शरीक थी। तारुफ के दौरान इनमें से अक्सर ने मुझसे भी मुस्कुराते हुए हाथ मिलाया। कभी मशरकी इक़दार में ज़नाने और मर्दाने का रिवाज हुआ करता था।
बड़े बड़े राजे महाराजाओं और नवाबों की महफिलों और औरतों में मर्द और औरत अलग अलग हिस्सों में शरीक हुआ करती थी। मतलब ये कि दौलत की फरावानी का इन बदलती कदरों से कोई ताल्लुक नहीं था, क्योंकि दौलत और पैसा तो इनके पास आज के इन नौ दौलतियों से कई ज़्यादा हुआ करता था। तो फिर ये आज़ाद ख्याली और बेहिजाबी हमारे माशरे में कहाँ से आ गई? कहते हैं कि इंसान की इब्तिदा पत्थर के दौर से हुई थी और शायद इसका इख्तिताम भी दोबारा पत्थर के दौर पर ही होगा। दरमियानी मुद्दत मुकम्मल अरूज और फिर यकसर जवाल का महज एक दुरानिया ही तो है। खाने से पहले हर तरह की गैर ममनुआ और ममनुआ मशरूबात से मेहमानों की तवाज़ो की गई। इंसान खुदा से हमेशा अक्ल और होशमंदी का तलबगार रहता है ताकि ज़िंदगी मतवाज़न और खुशगवार रह सके, मगर फिर शाम होते ही हम में से अक्सर इस होशमंदी से घबराकर खुद को मदहोशी के अंधेरे कुएं में उतार देते हैं। मेरे इर्द गिर्द भी इस मसनूई मदहोशी का दौर दौरा था, आरजी और झोटी बेखुदी। वो मदहोशी ही क्या जो खुमार में भी होशमंद रहे। मैंने उकता कर कमाली को वहाँ से निकलने का इशारा किया। वो तेज़ी से लपक कर मेरे करीब आया। इतनी जल्दी सर? खाना बस लगने ही वाला है। सेठ रहमान को किसी खास मेहमान का इंतज़ार है, इनके आते ही खाना चुन दिया जाएगा। मैंने उकताहट से कमाली की तरफ देखा। हमारी हाजिरी लग गई है, अब तुम यहाँ से निकलने की करो। कमाली ने सर हिलाया और सेठ रहमान को हमारी रवानगी से मुतले करने के लिए चला गया। मैंने भी कार पार्किंग की तरफ कदम बढ़ाए ही थे कि किसी जानिब से सेठ रहमान कमाली के साथ तेज़ और लंबे डग भरता हुआ नमूदार हुआ। ये क्या पीजर साहब, आप अभी से चल दिए? अभी तो शाम और महफिल ठीक तरह से भीगी भी नहीं है। मैं धीरे से मुस्कुराया। मैं शाम को देर तक बाहर औस में भीगता रहूं तो मुझे जुकाम हो जाता है। भीगने के मामलात में काफ़ी कम ज़र्फ वाक़या हुआ हूँ। रहमान मेरी बात सुनकर ज़ोर से कहका मारकर हंसा। खूब, बहुत ही खूब। अब तो मैं आपको हरगिज़ इतनी जल्दी वापस नहीं जाने दूंगा। महफिल के बाद बैठकर आपसे बहुत सी बातें करनी हैं। बरसों बाद किसी हमजाद से वास्ता पड़ा है। मैंने जान निकालने की कोशिश की कि मुझे अगले दिन किसी अहम प्रोजेक्ट के लिए मीटिंग और मवाद की तैयारी करनी है, मगर सेठ रहमान अड़ गया। नहीं भाई, अभी तो आपको इस महफिल की जान से मिलवाना है। शाहपारा बेगम चोटी की एक्ट्रेस हैं, बड़ी धूम मचाई है उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में। वैसे तो वो किसी भी पब्लिक प्लेस पर यूं आती जाती नहीं, मगर हमारे साथ कुछ दरीना मरासम का ख्याल है उन्हें कि आ रही हैं। ये ले, शायद ये उन्हीं की गाड़ी है, वो आ गई। आप बस 2 लम्हे इंतज़ार करें। मैंने आपकी बड़ी तारीफ़ की है इनसे। वो खुद भी बहुत मुश्ताक थी आपसे मिलने के लिए। सच पूछें तो वो सिर्फ आपसे मिलने के लिए ही आ रही हैं। सेठ रहमान जल्दी से आगे बढ़ गया और मेरा सवाल मेरे मन में ही मचल कर रह गया। वो भला मुझे जानता ही कितना था कि उसे मेरी तारीफ करने की ज़रूरत पड़ी। कुछ ही देर में सेठ रहमान एक ज़र्क बज़र्क और नाजुक अदा के पैकर को लिए मेरी तरफ आता नजर आया। मेरी नज़र इसके चेहरे से हटकर साथ चलती औरत पर पड़ी और मुझे हैरत का एक शदीद झटका लगा। मैं इस औरत को जानता था, मगर तब इसका नाम शाहपारा नहीं था, कुछ और था। शाहपारा की नज़रें मेरे नज़र से टकराई और वो भी एक झटके से ठटक कर वहीं जम के रह गई।